help us understand transistors. From this point onwards, we are going to start another topic, which is transistors. And for that, I would need a minute to show you a picture related to the discussion on transistors that we are going to have. All right. So just give me a minute. जी फरजीन क्वेश्चन है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पूछना था कि शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे कि एमसीक्यूज? दोनों होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी होंगे और एमसीक्यूज भी होंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट बिफोर I can access. All right, I think I could not download the book. Oh yes, and I don't know, somehow this book was misplaced by me, but now I have it with me. So before we move on to our discussion on microelectronic circuits, I would like to discuss. In fact, just give me 1 minute. Let me download it. Otherwise, we'll be stuck here. So up till now, what we have discussed has been about semiconductors, P and N type semiconductors, and then we discussed that how P and N type semiconductors, when joined together, result in a P-N depletion region, and then we saw that a P-N depletion region was just acting like a diode, and the primary function of the diode uh, and the primary function of a diode is to rectify input current into input alternating current into direct current. And then we saw that because of that rectification process, we lost half of the wave cycle that was input to a diode. In order to avoid the damage due to, in order to avoid the waste of electrical power caused by half wave rectification, we studied a Wheatstone bridge that was able to carry out full wave rectification, right? And then we saw that a diode can perform multiple functions, and we need to check it whether it is able to perform those functions or not. And in order to check that diode, we carried out different tests on the diode, and as a result of which we were able to say that the diode was functioning well or not, right? So from that point onwards, we started our discussion on a new type of uh, device, which was photodiode and Zener diode and
and voltage dependent resistors, etc., etc. Those were different kinds of those were other those were other kind of devices which had their own functions, and we individually saw each of those devices and their functions. Then we started our discussion on thyristors, and from thyristors we moved on to the discussion of diox, and from diox to triax. And we said that इन सारों का जो हम फ्यूज देखेंगे आगे ट्रांजिस्टर्स के साथ जब हम पढ़ लेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी उसको समझने में. ठीक होगी बात जी? यहाँ तक समझ आती है? यहाँ तक क्लियर है सबको डिस्कशन जी? एनी क्वेश्चंस अप टिल दिस पॉइंट जी? एनी क्वेश्चंस? कोई बात आपको ना समझ आ रही हो, जो क्विज आपका है उससे रिलेटेड आपको कोई बात ना समझ आ रही हो जी? Any questions from whatever we have been discussing previously? All right, so then let's move on to the next discussion of transistors. All right. देखें ट्रांजिस्टर और डायोड के अंदर जो फर्स्ट डिफरेंस है, द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन जी फरजीन सर वो कहना था कि जो लास्ट टाइम आपने असाइनमेंट दी थी ना, उसमें जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो समझा देंगे आप एक एग्जांपल हमें, तो फिर इजी होगा हमारी. वो इस कंफ्यूजिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा. में नहीं न्यूमेरिकल्स दिए थे मैंने. इलेक्ट्रॉनिक्स में वो न्यूमेरिकल्स हैं. उसमें है सर असाइनमेंट, पिछली असाइनमेंट जो आपने हमें दी थी ना उसमें न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व करने वाले. ठीक है, बताएं मसलन कौन सा न्यूमेरिकल है? बता मुझे बुक में है उसमें. आई डोंट थिंक न्यूमेरिकल्स इतने डिफिकल्ट हैं. इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स में मैंने न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, और उसमें जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल्स. इसमें कौन सी असाइनमेंट है आपकी जो जिसकी आप बात कर रही हैं? इट्स ऑल थियरी. ये थी आपकी असाइनमेंट लास्ट, इजंट इट? यस सर. हाँ, नहीं इसमें सर, ये कौन नहीं, नीचे से नीचे वाली, ठीक है. उसमें वो न्यूमेरिकल्स गिवन है. ये वाली राइट, ठीक है. हाँ, इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है. लेकिन इसकी मैंने अभी आप कोशिश करें सॉल्व करने की. फर्स्ट ट्राइड योर सेल्फ. मैंने अभी तक LMS पे इसकी असाइनमेंट की डेडलाइन क्रिएट नहीं की हुई, तो ये मैं डेडलाइन आपको नेक्स्ट वीक के एंड तक दूंगा इसकी. ठीक है, तो आपका काम है कि इसको सॉल्व करें. इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो वो पूछें. आपने न्यूमेरिकल करके देखा है खुद सॉल्व? कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आ रही हो? सर ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ नहीं आ रहा. क्वेश्चन 6, ठीक है जी. ये थोड़ा सा 3, कंफ्यूज. ठीक है. इसमें ये आपसे कह रहा है जी, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा कि क्या आपने करना है इसके अंदर. कि 3 डायोड्स कनेक्टेड इन पैरेलल हैं. ठीक है, एक ये डायोड है, एक ये डायोड है, और एक तीसरी डायोड है जिसके अक्रॉस ये पैरेलल में इस तरह से कनेक्टेड है. ठीक है जी. ये कह रहा है सप्लाई करंट इज 6 एम्पेयर्स, व्हाट इज द करंट थ्रू ईच डायोड. ये जो करंट आ रहा है ये 6 एम्पेयर्स का आ रहा है. ठीक है, आपको पता है कि ये जो डायोड्स के क्रॉस वोल्टेज होता है ये कितना होता है. ठीक होगी बात. और क्या इन तीनों डायोड्स के क्रॉस सिमिलर वोल्टेज होगा या डिफरेंट वोल्टेज होगा, ये भी आप जानते हैं. ठीक है जी. और ये अगर 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप इसके क्रॉस आ रहा है, 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप इसके क्रॉस आ रहा है, 0.7 वोल्ट्स का इसके क्रॉस आ रहा है, दैट मीन्स इफेक्टिवली जो करंट को रेजिस्टेंस मिल रही है वो तीनों डायोड से बराबर मिल रही है. ठीक होगी ना बात यहाँ तक? तो अब आपने अंदाजा ये लगाना है कि आपके पास हर डायोड के क्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा. टोटल 6 एम्पेयर्स आ रहा है. ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप इस पर सोचें. इसको सोचने का तरीका ये है कि अगर 3 रेजिस्टर्स आप यहाँ कनेक्ट करते थे सीरीज के अंदर, और इसकी भी
2 ohms होती थी, 2 ohms रेजिस्टेंस होती थी और 2 ohms होती थी, तो अगर ये 6 एम्पेयर करंट आ रहा होगा तो एक लड़ी में कितना जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे आके उसने स्प्लिट होना है, ठीक है। तो इस पे सोचें, वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, अगर हम डायोड को अगर रेजिस्टेंस के तौर पे भी देखें तो डायोड जो रेजिस्टेंस दे रही है वो सेम दे रही है ना, सिलिकॉन डायोड है, तीनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0.7 होगा। अब आपने सोच के बताना है कि एक डायोड में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं है, कॉमन सेंस का सवाल है, आप सोचो इस पे। A lot of questions would just require you to think over it, over those questions. आप सिर्फ सोच के आपको समझ आ जाएगी किस तरह से सॉल्व होना। All right, please turn on your cameras so I can see you. All those who have not turned it on yet, please turn on your cameras and let me move on to the next discussion of transistors. All right. So up till now we have seen that. Oh, I'm sorry. Up till now what we have seen is that a diode is a two-terminal device, and when the p-type material is provided with a positive diode with a positive bias, the diode starts to conduct current. But on the other hand, a transistor is a three-terminal device, and इसमें जो तीन terminals हैं, it's one is the base, the other one is the emitter, and the third one is the collector. ठीक होगी बात? तो all you need to remember for now is that a transistor is nothing but NPN or PNP type device. In a diode you had one p and one n type connected together, whereas in a transistor you have 2p and one n, or 2n and 1p regions, right? Just like shown here, this is an n type region, this is a p type region, this is an n type region again. Similarly p and p, right? The sandwiched region in between the two n type regions or in between the two p type regions is called the base, ठीक है। जो बीच वाला रीजन होता है इसको हम बेस कहते हैं। जो साइड पे एक रीजन है वो एमिटर है, दूसरा कलेक्टर है। इसको हम देखेंगे कि एक को हम एमिटर क्यों कह रहे हैं, दूसरे को कलेक्टर क्यों कह रहे हैं, ठीक होगी बात। ये रीजन जो है सारा, ये दिस इज सेमीकंडक्टर रीजन। कनेक्टेड टू द सेमीकंडक्टर रीजन इज अ मेटल कॉन्टैक्ट, ठीक है। वाई डू वी अटैच अ मेटल कॉन्टैक्ट टू सेमीकंडक्टर्स? क्योंकि आपके पास जो मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं, metals are conductors and they allow current to flow. So up till the point that the device ends, we want control of current through the device. But once the device is over, uske baad we want a conductor, right? As soon as the current reaches the terminal of the device, the current should flow easily. There should not be any additional control over the current due to uh, due to uh, due to the resistance of the conductors or the resistance of the wires. तो करंट को फ्लो करवाने के लिए आपने उस सेमीकंडक्टर के साथ साइड के ऊपर दो मेटल कॉन्टैक्ट्स लगा दिए, मेटल्स कंडक्टर्स हैं, वो करंट फ्लो कर देंगे। अच्छा, अब आपने देखना है कि ये भी हम जो जिस बात कर रहे हैं जिस ट्रांजिस्टर की, वो है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक होगी बात। बाइपोलर जंक्शन, बाइपोलर क्यों कह रहे हैं इसको हम? व्हाई आर वी कॉलिंग इट बाइपोलर? जी बताओ। और बाइपोलर जंक्शन, ये वर्ड क्या है? जब आपके पास डायोड थी तो आपने बात की थी एक पीएन जंक्शन बनती थी सेंटर में, इन बिटवीन द पी एन एन टाइप रीजन्स। इसमें आपके पास दो पी एन साइड्स हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड है। इन दोनों साइड्स के ऊपर आपके पास जंक्शंस फॉर्म होने के चांसेस हैं एज कंपेयर टू द जंक्शन फॉर्म ड्यू टू पी एन, सिंपल पी एन जंक्शन। इसलिए बाय दो पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, राइट? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड एक्चुअली स्टैंड्स फॉर? आप इसके बाद देखेंगे आपके पास जो बाइपोलर जंक्शन है, एक जंक्शन कौन सी हो गई? एक जंक्शन कौन सी हो गई? ये वाली। एक जंक्शन ये वाली हो गई। अब आपके पास क्या होता था कि जब आप पी एन जंक्शन के अंदर पी पॉजिटिव होता था और एन नेगेटिव होता था तो हम क्या कहते थे? फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है जी। जब ये एन पॉजिटिव होता था, अगर ये पी पॉजिटिव है, ये एन नेगेटिव है, तो इसको भी हम कहेंगे क्या? फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। तो एक दो जंक्शंस कौन सी हैं? एक एमिटर बेस जंक्शन है, दिस वन, और एक कलेक्टर बेस जंक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि ये कलेक्टर बेस जंक्शन है, ये एमिटर बेस जंक्शन है, और ये कट ऑफ एक्टिव और सैचुरेशन मोड्स उसने बता दी। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर देयर कैन बी थ्री काइंड्स ऑफ मोड्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक कट ऑफ मोड है जिसके अंदर वो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करता, जो ये आपका ट्रांजिस्टर है। एक एक्टिव मोड है जिसके अंदर वो कंडक्ट करता है, और अगर ज़्यादा बेस वोल्टेज, अगर आप ज़्यादा
करंट ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तीसरा है सैचुरेशन, इस पे अगर आप ज्यादा वोल्टेज भी सप्लाई कर देंगे तो करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, करंट चेंज नहीं होगा लेकिन फ्लो कर रहा होगा, करंट कंडक्ट कर रहा होगा। तो इसके अंदर जो एक्टिव मोड है उसके अंदर एमिटर बेस्ड जंक्शन क्या है, आपको फॉरवर्ड बायस होनी चाहिए। दैट मींस ये जो है ये नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरीके से जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो रिवर्स बायस्ड होनी चाहिए। दैट मींस कि आपके पास ये जो कलेक्टर है इसको इसको नेगेटिव होना चाहिए और इसको पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक होगी बात यहां तक? ऐसा क्यों है? Why do we say that in order for a transistor to conduct we need these junctions in these orders? ये सवाल रह जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होती है सबको? क्लियर है यहां तक बात सबको? एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, अहमद नबील अरकम, where are you? Your cameras are switched off. फारूक, बिलाल, राफे, सर ये बाइपोलर वाली चीज रिपीट कर देंगे? देखो आपके पास जब पीएन जंक्शन होती थी तो उसके अंदर एक पी मटेरियल होता था और एक एन मटेरियल होता था, ठीक है? तो उसके दरमियान जब करंट फ्लो करता था तो जो जो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते थे तो बीच में एक रीजन बन जाता था, जिस रीजन को हम क्या कहते थे? डिप्लीशन रीजन। एक रीजन बनता था ना पीएन के दरमियान डायोड में। जी बाइपोलर इसके अंदर एक एन पी इस तरफ है और एक एन पी इस तरफ है, तो इसमें दो रीजन नहीं बनेंगे। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, समझ आ रही है ना इस बात की कि आपके पास दो रीजन बनेंगे, एक पीएन इस तरफ होगा, एक पीएन इस तरफ है। ठीक है, तो दो डिप्लीशन रीजन बनेंगे। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बुला रहे थे मुझे। आपका कैमरा कंसिस्टेंटली ऑफ होता है सर वो मेरा आपको बताया था सर, एक कैमरा क्लास खराब में है। भी आपने कैमरा ऑन नहीं किया। सर एक आपको क्लास में भी। पिछले क्लास में बताया था मेरा कैमरा खराब है इसलिए। तो भैया आप अरेंज करें कैमरा अपना। इट्स द 6th वीक, मैंने पहली वीक में अनाउंसमेंट की थी कि कैमराज ऑन रखना पड़ेगा अटेंडेंस मार्क करने के लिए। सर कोशिश जारी है सर, मैं ढूंढ रहा हूँ सर, कोशिश कर रहा हूँ सर कहीं से सही हो जाए। All right, let's move on to the next discussion about transistors। जो बात हम करना चाह रहे हैं वो क्या है कि अगर ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करना है तो ये दो जंक्शन आपको समझ आ रही कौन सी बन रही हैं? एक कलेक्टर और एक एमिटर की है, एक कलेक्टर और बेस की है, और एक एमिटर और बेस की है। ठीक है, तो इस ट्रांजिस्टर को आपने याद रखना है कि जब हम शो करते हैं तो इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, ये बेस होता है, ये एमिटर है और ये कलेक्टर है। ये ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक होगी बात? जिसके ये जो शाज ने शो किया है ये एनपीएन। जो दूसरा टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। उसमें सिर्फ फर्क ये है कि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई थी। ठीक है जी, करंट बजाय इस तरफ फ्लो कर इस तरह फ्लो करने के, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक होगी बात? लेकिन जो बुनियादी चीज बताने वाली है वो क्या है कि ये बेस है, ये एमिटर है अगेन, और ये कलेक्टर है। ठीक होगी बात? और ये ट्रांजिस्टर कौन सा? ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो अब आपको मेरे ख्याल समझ आती है कि जो ट्रांजिस्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कौन सा होता है? जिसके अंदर दो एक पीएनपी होता है या एनपीएन होता है। ठीक होगी बात? समझ आ रही इस बात की? अब हम देखना चाहते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि अगर ये बेस, ये दोनों चीज़ें रिवर्स बायस होंगी तो क्यों कट ऑफ रीजन में होगा, अगर ये दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होंगे तो फिर क्या रीजन होगा, और क्यों कंडक्ट करेगा, ये किस तरह कंडक्ट नहीं करेगा, ये सवाल रह गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है आपको बात की? एनी क्वेश्चन अप टिल दिस पॉइंट? क्या आप ट्रांजिस्टर कहते किसको हैं? जी, ये बात समझ आ रही सबको? एनी क्वेश्चंस? ये देखें, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एक बेस है, कलेक्टर है, एमिटर है, बेस है, कलेक्टर है, एमिटर है। ये बातें आपको मैं भी बता रहा था। ठीक है, ये एनपीएन भी हो सकता है, पीएनपी भी हो सकता है। एनपीएन ये है जिसके अंदर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा होगा,
और जो PNP है उसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दिस इज द PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली पहले यहाँ पे एमिटर कलेक्टर से एमिटर की तरफ आ रहा है, C to E आ रहा है, ये IE है ना। IE मींस, IE का मतलब है एमिटर करंट, IC का मतलब है कलेक्टर करंट, और IB का मतलब है बेस करंट, ठीक है जी। I means current and E means emitter। तो इसमें आप देखें जो PNPN ट्रांजिस्टर है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द कलेक्टर टू द emitter, whereas on the other side अगर आप इसकी बात करें, करंट फ्लोज फ्रॉम emitter टू कलेक्टर, ऑपोजिट है डायरेक्शन करंट की, लेकिन बुनियादी चीजें सेम है कि बेस है, कलेक्टर है, emitter है, सिर्फ करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक होगी बात। और बेस करंट की भी ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ आती बात की? क्लियर जी? एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन था किसी का? जी, somebody had a question. All right, so let's move on to our next discussion। क्या आपके पास, आपको ये समझ आती है कि बेस है उस पर एक वोल्टेज होगी, कलेक्टर है उस पर एक वोल्टेज होगी, एमिटर है उस पर एक वोल्टेज होगी, तीनों टर्मिनल्स के अंदर अपने अपने करंट्स होंगे, ठीक होगी बात? यहाँ तक समझ आती है बात? अब ट्रांजिस्टर से हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं, ये सवाल है कि हमें क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी कि हमने PN से PNP बना लिया, NPN बना लिया, क्या फायदा होगा इसका? ठीक है, यही यही सवाल रह जाता है ना। क्लियर? यहाँ तक समझ आ रही सबको बातें? क्लियर है यहाँ तक डिस्कशन सबको? All right, good that you have learned to nod when you understand, but not everybody does that. Why doesn't Muhammad Mohyuddin, Hamza Asif, Sufyan, why don't you people nod? Just give me a nod when you understand. Good, good. All right. So let me move on to the next discussion. देखिए हमने 3 मोड्स की बात की है ट्रांजिस्टर्स की, ठीक है। ये बुक है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। दिस इज फॉर ईयर, दिस हैज बीन years for years been the this has for years been a very जबरदस्त बुक फॉर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये बुक आप ऑनलाइन एक्सेस करेंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, वरना इस स्लाइड्स के अंदर और इस लेक्चर के अंदर जितनी उसकी हमें ज़रूरत थी हमने उसको देख लिया, ठीक है। आपको ज़रूरत होगी तो इसकी मैं आपको जो बुक है वो शेयर भी करता हूँ, ठीक है। But this book was written by, I guess, American professors. I don't exactly remember, but this has been one of the most famous books on microelectronics. अब आप देखें कि इसमें इसलिए हम इसकी हेल्प ले रहे हैं समझने के अंदर, in order to understand more easily कि हमारे पास किस तरह से करंट फ्लो करेगा, ठीक होगी बात। अब आप देखें इसके 3 मोड्स हैं। कट ऑफ मोड मींस कि करंट फ्लो नहीं करेगा, एक्टिव मोड मींस कि करंट फ्लो करेगा, सैचुरेशन मोड का मतलब क्या है कि करंट ज्यादा नहीं होगा इसके बाद। अब जितने करंट ट्रांजिस्टर में से पहुंच चुका होगा फ्लो करने के लिए, उससे ज्यादा करंट अब फ्लो नहीं करेगा। जितना करंट उसके अंदर अब मैक्सिमम उस ट्रांजिस्टर में से फ्लो कर सकता था वो सैचुरेट कर गया, ठीक है। सैचुरेशन का क्या मतलब होता है कि मेरा एक सैचुरेशन लेवल आ गया कि इसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब आप इसके जो अगली चीज है वो क्या है कि आपके पास इस ट्रांजिस्टर के ऊपर आपके पास अगर वोल्टेज आप बढ़ा भी देंगे तो करंट इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये उसका सैचुरेशन लेवल आ चुका है। ये इसकी कंडीशन ये है कि दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले कट ऑफ मोड। अब आपको ये समझ आ रही है कि कट ऑफ मोड क्या होता है। This is what a transistor looks like. This is base, this is collector and this is emitter। इसको इसने यहाँ पे मैंने लंबे रुख दिखाया है, आपको उसने चौड़ाई के रुख दिखाई हुई ये चीज, ठीक होगी बात। अब आपको ये पता है कि ये PN एक जंक्शन ये बन गई है, एक PN जंक्शन ये बन गई है, ठीक होगी बात। अब होगा क्या कि आपके पास यहाँ इस N रीजन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है। इस N रीजन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी, इस P रीजन के अंदर होल्स की मेजॉरिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज from the from where they are in higher concentration to the point where they are in less concentration and they form depletion regions।
1 here and 1 here, राइट? ये बात समझ आ रही सबको? ठीक है, अब सपोज करें, सपोज फॉर नाउ लेट्स जस्ट सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन इत्तेफाक से यहाँ पे मौजूद था, ठीक है जी, इत्तेफाक से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद था। अब अगर उसको इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करना है, लेट्स से इट हैज टू क्रॉस दिस रीजन, और लेट मी erase it, let me draw here. लेट्स से इत्तेफाक से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद था और इसने अब डिप्लीशन रीजन बन चुका है और इसने ये जंप करना है यहाँ पे। How would it be able to jump across the depletion region after the depletion region has formed? कैसे वो करेगा? जब हम डायोड की बात करते थे तो डायोड में हम क्या कहते थे कि आपके पास एक पी रीजन है, एन रीजन है, एक डिप्लीशन रीजन बीच में बन जाता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसने अब इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करना है तो इसको नेगेटिव देना पड़ेगा और इसको पॉजिटिव देना पड़ेगा, ऐसे ही है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो एमिटर बेस जंक्शन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन ने इस पी रीजन में क्रॉस करके जाना है तो इसको नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो आपने किया क्या कि इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इस टर्मिनल को पॉजिटिव आ गया और इस टर्मिनल पॉजिटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इस टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेस के ऊपर जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, दिस इज एक्चुअली अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एमिटर साइड टू इट्स ओन साइड, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर। तो रिमेंबर पोटेंशियल बैरियर की जो हमने डिस्कशन की थी वो कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से हमने बनाया हुआ है, how much potential barrier would it have across the PN junction? How much potential would exist across this collector, across this emitter base junction? What would be the value of potential? Anyone who would like to answer? G. What is the value of potential barrier depletion regions, potential barrier in a PN junction diode made of silicon? All right, this multiple people are able to answer. Now think on this, what will be the potential barrier of the PN depletion region in a transistor, in a base emitter junction? Sir, 1.4. 0.7 volts, 0.7 volts. We are talking of one depletion regions, not two. हाँ नहीं, लेकिन सिर्फ बेस एमिटर की बात कर रहा हूँ, ओनली बेस एमिटर, ठीक है। 0.7 यहाँ क्या है, 0.7 ये उसके ओवरऑल अक्रॉस 1.4 बन जाएगा, लेकिन मैं ये सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इस रीजन की। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो ये बेस और एमिटर के दरमियान कितना वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, 0.7 वोल्ट्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने एमिटर से बेस की तरफ किसी चीज को फ्लो करवाना है, इलेक्ट्रॉन को थ्रो करवाना है, तो मुझे उसको 0.7 वोल्ट्स देना पड़ेगा। दैट मींस नंबर 1, इन ऑर्डर टू allow conduction of current, conduction of electrons from the emitter to the base, I need to supply forward bias to emitter base junction, emitter base junction पे फॉरवर्ड बायस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक होगी बात, तभी ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके यहाँ जाएगा। So the first thing that I need to understand is that I need to supply sufficient amount of voltage to allow current or to allow electrons to move from the N type to the P type region in an emitter base junction. इस emitter base junction को में से अगर इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पे फ्लो करवाना है तो मेरे पास इसको मुझे फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। मेक सेंस? समझ आ रही इस बात की? समझ आ रही है आपको इस बात की? सबको समझ आ रही? अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स हैव जंप्ड फ्रॉम द एन टाइप टू द पी टाइप, जो कि बेस है, एमिटर से बेस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर चुके हैं, यहाँ पे आ गए। वो क्यों आए कि ये जो डिप्लीशन रीजन था 0.7 वोल्ट्स का, इस 0.7 वोल्ट्स को आपने इस बेस पे दे दिया और इस एमिटर को आपने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। ये ऐसे ही है ना कि अगर मैं इस हिस्से को निकाल दूं, इतने हिस्से को काट दूं मैं इसमें से, इसके इधर इस साइड पे नहीं देखना आपने, इस साइड पे देखें। तो ये एन और ये पी के अंदर अगर मैंने अलाउ करना है तो इसके अंदर आप देखें ये डिप्लीशन रीजन है, ये
सिलिकॉन के अंदर डिप्लीशन रीजन अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट्स का बनता है। अगर मैंने इस सिलिकॉन में से इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के इसमें भेजना है तो इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करना जरूरी है बीच में। इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने का जो इसका पोटेंशियल है उससे उससे उसके जितना या उससे ज्यादा पोटेंशियल मुझे देना पड़ेगा। तो आप देखें ये पोटेंशियल मैं कितना सप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट्स। अब क्या हुआ कि इस 0.7 वोल्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके यहाँ पहुंच गए। ठीक होगी बात? Does everyone appreciate the fact that the emitter based junction has to be forward biased in order to allow electrons to flow from the emitter to the collector in an NPN transistor? NPN transistor. ठीक है, समझ आ रही इस बात की? सबको समझ आती है इस बात की? मेक सेंस? क्लियर होती बात ये? सर रिपीट कर दें ये वाले क्या समझ नहीं एनपीएन आ वाला। रही? सर ये जो फॉरवर्ड बाइस कैसे बनेगा ना, क्योंकि अच्छा, एक साइड एक पे भी एन है, दूसरी साइड पे भी एन और दरमियान में पी है ना, पी ठीक पे ठीक पॉजिटिव हो। ठीक ठीक, इस पे जाते। देखें आपके पास डायोड क्या थी, पी एन, ये बीच में एक डिप्लीशन रीजन बन जाता था, इसके ऊपर क्या होता था, नेगेटिव साइड, और ये पी पॉजिटिव साइड होती थी। ठीक है, एन के ऊपर जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे होल्स होते हैं। आपने इस इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ थ्रो करना होता था तो क्या होता था, इस बैरियर को क्रॉस कराना होता था। ये बैरियर कितने का था, 0.7 वोल्ट्स का। दिस इज नेगेटिव साइड, दिस इज पॉजिटिव साइड। ठीक है, अब नेगेटिव साइड अगर आप इसको यहाँ पे देंगे तो तभी ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा ना इस तरफ। अगर ये साइड नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुश मिलेगा, अगर ये पॉजिटिव होगी तो ये बाहर की तरफ पुश लगेगा, विच इस वो फिर रिवर्स बायस हो जाएगा। तो आपको डायोड के अंदर क्या करना पड़ता था, पी को पॉजिटिव रखना पड़ता था और जो एन साइड है उसको नेगेटिव रखना पड़ता था, ताकि इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिले अपने एन साइड की तरफ से और वो क्रॉस करके डिप्लीशन बैरियर क्रॉस कर जाए। ऐसे ही होता था। अब आप देखें कि अब आपके पास जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो कुछ इस तरह, ये आपकी बुक ने ये स्ट्रेट दिखाया हुआ, तो मैं भी इसको ये N है, ये P है और ये N है। अब आप देखें कि ये एक डिप्लीशन रीजन यहां बन जाएगा, एक डिप्लीशन रीजन यहां बन जाएगा। ठीक होगी बात? अब यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और यहां पे होल्स हैं आपके पास। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस डिवाइस, अब ये जो डिप्लीशन रीजन बनना था डिफ्यूजन करंट की वजह से वो बन चुका है। अब इसके अंदर से करंट हमने गुजारना है, तो आपके पास ये चीज क्या हो गई, बेस हो गई, ये चीज क्या हो गया, कलेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, एमिटर हो गया। ठीक है, अब आप पहले भूल जाएं कि ये क्या है, इसके ऊपर नहीं देखना, इस ब्लैक लाइन के नीचे देखें आप। अगर इसमें से मैंने कंडक्शन करवानी है तो ये क्या है, ये बिल्कुल पीएन जंक्शन नहीं बन गया। इस पीएन जंक्शन में से मुझे क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाए, मुझे यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रही इस बात की? तो ये P जब पॉजिटिव होता है और N जब नेगेटिव होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। और ये एमिटर बेस्ड जंक्शन की हम बात कर रहे हैं कि एमिटर बेस्ड जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम दी N साइड टू दी P साइड। समझ आ रही इस बात की? तभी ये बैरियर क्रॉस करेंगे। कितना हम, अगर इसको मैं लेट से इसको नेगेटिव कह रहा हूँ, मकसद क्या है पॉजिटिव नेगेटिव का, कि आपके पास P हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए N के मुकाबले में। ठीक है, N डज नॉट नीड टू बी नेगेटिव ऑलवेज, इट कैन आल्सो बी 0 वोल्ट्स। लेट से दिस इज ग्राउंड कर दिया मैंने इसको, ग्राउंड मीन 0 वोल्ट्स। इसको अगर मैंने 0 वोल्ट्स दे दिया तो कितना पोटेंशियल, ये पोटेंशियल बैरियर कितने का है सिलिकॉन में, अराउंड 0.7 वोल्ट्स का। तो मुझे इतना ही इसको क्रॉस करने के लिए हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस डू आई नीड टू सप्लाई, 0.7 वोल्ट्स। तो अगर ये 0.7 वोल्ट्स इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ पे ऊपर मिल रहे हैं, ऊपर हायर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट्स का, तो क्रॉस करके दूसरी साइड पे चला जाएगा। यही होता था डायोड के अंदर। समझ आ रही इस बात की? अब तो एमिटर बेस्ड जंक्शन कंडक्ट करने के लिए ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बायस में होनी चाहिए। मेक सेंस? समझ आती है इस बात की? जिनको समझ आती है प्लीज गिव मी अ टिक।
अच्छा ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रही मुझे बता सकते हैं क्या बात समझ नहीं आ रही जी? ऑल दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या बात हो रही है, एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या बात हो रही है। ऑलराइट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा कि आपके पास यू हैव एन एनपीएन ट्रांजिस्टर and first of all we are seeing what a PN junction looks like. It's a junction that has potential barrier across it, and which to allow current, to allow electrons to flow across it, you need to supply it with potential difference, with voltage, right? And the base is basically p-type material and the emitter is n-type material. So in order to allow electrons to flow from the n to the p side region, you need to supply forward bias to emitter base junction. That means to the base you need to supply positive potential, and to the emitter you need to supply zero potential or negative potential. The base should be at a higher potential compared to the emitter, right? That's what we are discussing. और अगर आप एमिटर को 0 वोल्ट दे देंगे तो बेस को हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। अब कितना हायर पोटेंशियल होना चाहिए, तो आपको पता है कि सिलिकॉन पीएन जंक्शन के क्रॉस 0.7 वोल्ट्स होते हैं, तो 0.7 वोल्ट्स आपको कम से कम सप्लाई करनी है ताकि इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर दे। ठीक है, इसकी मिसाल आप देखें कि जब वो जो जो वो रेस होती है जिसके ऊपर वो उसको क्या ऑब्स्टेकल रेस कहते हैं, कि वो दौड़ता हुआ आता है, फिर जंप करता है, उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करता है, फिर एक और ऑब्स्टेकल आता है तो उसको फिर जंप करता है, ऑब्स्टेकल क्रॉस करता है, तो वो उसको उस जिस पॉइंट पे ऑब्स्टेकल आ रहा होता है उसके ऊपर वो जंप करता है, उसको एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये भी आप कह लें कि ये ऑब्स्टेकल ही है, ये बिल्कुल ऑब्स्टेकल है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, अब इसके बाद इसको ये 0.7 वोल्ट्स मिल रहे हैं आगे, तो इसको 0.7 वोल्ट्स का पुश चाहिए कि ये क्रॉस कर सके, तो 0.7 वोल्ट्स आपने ये सप्लाई किए हैं तो जंप कर जाएगा वो, अगर नहीं सप्लाई करेंगे नहीं जंप करेगा। यही डायोड में होता है, हमने इससे पहले डिस्कशन भी की थी। इस बात की समझ आ रही सबको? क्लियर अप टिल दिस पॉइंट? हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड? For all those who are not able to understand what this is going on, give me a yes. All right, I have one yes by Sheikh Saif. If it's for not being able to understand, please drop it. अगर आपको समझ आ रही है तो इस yes को drop कर दें। All right, all those who are not able to understand कि क्या बात की है हमने। ठीक है जी, तो पहली कंडीशन क्या हुई कि आपके पास अगर ट्रांजिस्टर ने कंडक्ट करना है तो एमिटर बेस जंक्शन को एनपीएन के अंदर, पीएनपी में भी इस तरह नहीं होगा लेकिन हम समझने के लिए एनपीएन ले रहे हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप शो करना आसान होता है। ठीक है, तो आप पहली चीज़ क्या हुई कि फॉर ट्रांजिस्टर टू कंडक्ट करंट यू नीड टू हैव एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड, राइट, द फर्स्ट कंडीशन। तो ये जो पहली कंडीशन हमने देखी थी, ये जो कंडीशन आपने देखी है एक्टिव होने के लिए, एक्टिव मींस करंट फ्लो कर रहा है, ये एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए, दैट वी हैव जस्ट सीन, राइट? समझ आ रही इस बात की? और अगर ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, देखें सैचुरेशन में और एक्टिव दोनों में इसको फॉरवर्ड बायस्ड रखा हुआ है, अगर ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, रिवर्स बायस्ड होगा तो करंट ट्रांजिस्टर कंडक्ट करंट नहीं करेगा, जिसका मतलब क्या है कि कट ऑफ मोड में होगा। ठीक है जी, समझ आ रही? तो पहली कंडीशन क्या है कि दैट योर ट्रांजिस्टर शुड बी in order to allow current to flow through the transistor, your emitter based junction should be forward biased. ठीक है जी, समझ आ रही इस बात की? इसका मतलब क्या बनता है, लेट मी रीड्रॉ इट, कि अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, तो ये बेस है, बेस को पॉजिटिव होना चाहिए, इसको 0 वोल्ट्स पे होना चाहिए या नेगेटिव पोटेंशियल पे होना चाहिए, बेस को एमिटर से हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। अगर ये पीएनपी है, पीएनपी, तो ये बेस हो जाएगी, ये कलेक्टर हो जाएगा और ये एमिटर हो जाएगा। तो अब आपके पास पी ये है, पी ये है, तो आपको पॉजिटिव ये रखना है, नेगेटिव इसको रखना है। ठीक है जी, लेकिन मकसद कहने का क्या है कि आपके पास जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होनी चाहिए। जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होने का मतलब क्या है कि योर पी टाइप शुड बी एट हायर पोटेंशियल देन एन टाइप, द जंक्शन हियर शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। So this will be the first condition, emitter base junction should be forward biased
in order to allow active या saturation mode. ठीक है, ट्रांजिस्टर कंडक्ट ही तब करेगा जब आपके पास एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो. ठीक है, यहां तक समझ आ रही सबको बात? कोई कंफ्यूजन हो यहां तक? ऑलरेडी अगर समझ आती है जस्ट नॉड योर हेड. All right, Hamza, Asif, Rafe, nod your head. Yes, show me by nodding that you have understood. All right, that means you understand what I'm trying to say. अब हम मिसाल के तौर पे सिर्फ ले रहे हैं NPN ट्रांजिस्टर. ठीक है जी. अब आप देखें कि आपके पास ये P था, ये N था और ये N रीजन था. ठीक है, यही ट्रांजिस्टर था ना, हम बेसिकली इसकी बात कर रहे थे. और N रीजन में आपके पास जो मेजॉरिटी थी वो इलेक्ट्रॉन्स की थी, 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 इलेक्ट्रॉन्स की थी. ठीक है जी, जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, क्योंकि आपने डोपिंग ग्रुप 5 की हुई है, रिमेंबर आपने ये पढ़ा हुआ है. और जो आपके पास यहाँ पे मेजॉरिटी है ये होल्स की है, होल्स की है, होल्स की है, होल्स की है. ठीक है जी. इसके अलावा जो आपने ये जो इसको नाम दिया हुआ है, ये बेस नाम दिया हुआ है, इसको एमिटर का नाम दिया हुआ है और इसको कलेक्टर का नाम दिया हुआ है. ठीक है, समझ आ रही इस बात की? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इस पहली चीज़ आपने देख ली कि ये जो एमिटर बेस जंक्शन था, एमिटर बेस जंक्शन, इसको फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा अगर आपने करंट फ्लो करवाना है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है जी, करंट फ्लो करेगा अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस रखेंगे तो करंट फ्लो करेगा. फॉरवर्ड बायस अगर आप इसको एमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखेंगे तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है जी, चाहे PNP हो चाहे NPN हो. और फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है कि आपके पास जो P टाइप मटेरियल है इट शुड बी एट हायर पोटेंशियल देन N टाइप. ठीक है, P शुड बी एट हायर पोटेंशियल देन N टाइप. राइट, ये बातें आपने याद रखनी है. अब हम अपनी लॉजिक आर्ग्यूमेंट का एक सेकंड हिस्सा स्टार्ट करने लगे हैं कि हम यहाँ तक मसला ये है कि हम किसी हाल में खुश नहीं रहते. तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ जंप करके पहुँच गया है, ये अब यहाँ पे खुश नहीं है. ठीक है, ये वही जानता है कि क्या वजह है कि खुश नहीं है, बट हमें अब इसको खुश करना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको क्रॉस करा के दूसरे डिप्लीशन बैरियर को भी क्रॉस करवाना पड़ेगा. ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब वो पहुंच चुका है तो एक और बैरियर है इसके आगे जो इसने क्रॉस करना है. अगर ये इसने क्रॉस करके यहाँ, और इसने जाना किस तरफ है, जाना इसने इस तरह से है. हाउ शुड आई ड्रॉ हियर? इसने इस तरह से फ्लो. ऑलराइट, दिस वाज अ वेरी क्रिएटिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग विद वाइट कलर. इसने इस तरह से फ्लो करना है करंट में. ठीक है जी, इस तरह से फ्लो करके सर्किट बैठ जाए. अब ये करंट यहाँ जब पहुँच चुका हुआ है तो ये अब यहाँ खुश नहीं है. आपने इसको किसी ना किसी तरीके से इस कैद से आज़ाद करना है कि ये आगे चला जाए, बाहर जा सके सर्किट से. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक और बैरियर है जिसको क्रॉस करना पड़ेगा. और ये बैरियर किस चीज़ का है? इलेक्ट्रिक फील्ड का बैरियर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक वोल्टेज का बैरियर है, पोटेंशियल डिफरेंस का बैरियर है. ठीक है जी, तो वो क्या शेर है? एक और मुश्किल का सामना था मुझको, शेर सुना हुआ आपने? एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको. शेर किसको याद है? प्लीज वॉलंटियर इफ यू रिमेंबर द शेर. एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको. वेरी बैड, यू डोंट रिमेंबर, नन ऑफ यू रिमेंबर्स द शेर. किसको शेर याद है? ऑलराइट, गुड. It's good that Rafe, because Rafe has not been participating in the electronics part of the lecture, but it's good that he's at least participating in the poetry part of the lecture.
सर मुझे ये तो नहीं, एक और आता है। चलो सुना दो, जो आता सुना दो। सर मेरे हाथ में फूल है, असला तो नहीं। ऑलराइट, दिस होल क्लास इज लाफिंग, आई डोंट नो व्हाई। nobody is laughing. I can't hear anybody laughing. नो सर, सुनाओ सर सुनाओ आप। ये एवरीवन जमाना इज, जो है जमाना जो है ये जज्बात की कदर नहीं करता। आप अपनी जज्बात एक्सप्रेस करो शायरी से। टेंशन ना लो लोगों की। बताओ, इसके बाद मैं अपना शेर सुनाऊंगा, मतलब किसी और का शेर मैं अपना करके सुनाऊंगा। सर मुझे सिर्फ एक मिसरा आता था इसका। ठीक है ठीक है ठीक है। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट क्लास it's your job to find out the next misra and recite with us. Now it's your job to look at the complete couplet, come prepared with the complete couplet next time, and we will start the class from your couplet, right? कि वो जो असला है उसकी जगह फूल है, तो उसके आगे आप उस फूल से क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन जो शेर है वो क्या है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, कुछ इस तरह करके है। ठीक है, तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, मुनीर न्याजी का शेर है। अब सवाल ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दरिया को क्रॉस करके, एक पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है जी। अब इसने एक और पोटेंशियल बैरियर को एक और दरिया का सामना इसको हो गया, ये जो पोटेंशियल बैरियर यहाँ आ गया, अब इसने इसको भी क्रॉस करना है। ठीक है, ओके शेख साहब, आपको भी कोई शेर शेर याद तो नहीं आ गया? नहीं सर, मैंने पूछना था उसने दरिया के पास जाके क्या सामने किया। यही तो हम देखना चाह रहे हैं कि वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन दूसरे दरिया को क्रॉस करके सर्किट में फ्लो करना चाह रहा है। नहीं यही सर, जब सवाल है। मुनीर जब उधर गया तो उसने क्या सामना किया। ये आपको मुनीर ही बता सकता है। ठीक है जी, ये यू कैन सर्च फॉर आंसर्स टू दिस शेर विद मुनीर। ठीक है जी, मुझसे आप इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन पूछें, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है। ठीक है जी, तो इसने ये जब क्रॉस किया एक दरिया, तो दूसरा दरिया ये क्रॉस करके इस सर्किट से बाहर फ्लो करना चाहता है। ठीक है, तो वंस इट विल बी एबल टू फ्लो आउट ऑफ द सर्किट, इट विल बी एबल टू फ्लो इनटू द डिवाइस जिसके थ्रू ये फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, जिस डिवाइस के ऊपर आपने ये ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है ये उसके थ्रू जा सकता है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये इसमें से जब यहाँ पे ये एक बैरियर क्रॉस करके पहुंचा है, तो ये दूसरा बैरियर जब क्रॉस करने जा रहा है, तो इसको दोबारा एक दरिया का सामना है, एक पोटेंशियल बैरियर का सामना है जो इसने क्रॉस करना है। ठीक होगी बात? तो ये अगेन रिमेंबर, ये एक पी है और एन टाइप रीजन है, और यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर दोबारा बन रहा है, ये जो पोटेंशियल बैरियर आपको नजर आ रहा है। अब इसको क्रॉस करने के लिए दोबारा इसको कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, कोई इसको वोल्टेज की ज़रूरत है, कोई पोटेंशियल बैरियर एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करने के लिए इसको दोबारा एनर्जी की ज़रूरत है। अब मसला ये है कि अगर आप इसको दोबारा से, अगर मैं यहाँ पे मैं एक माइक्रोस्कोपिक आई लगा दूँ और देखूँ तो ये कुछ इस तरह से बनता है, ये पी है, ये एन है और ये पी है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच चुके हैं और इस इलेक्ट्रॉन्स ने अब जंप करके इधर जाना है और सर्किट से बाहर निकल जाना है। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम क्या है कि अब आप ये रास्ते में जो पोटेंशियल बैरियर है इसके 0.7 वोल्ट्स हैं जो क्रॉस करने हैं इसमें। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या हम सप्लाई करें कि ये इसको क्रॉस कर दें, क्या करें कि ये यहाँ पे इसको क्रॉस कर दे। अगर मैं यहाँ पे लेट से, अब आप खुद सोचें, व्हाट इफ आई सप्लाई पॉजिटिव हियर एंड नेगेटिव हियर। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई कर देता हूँ तो ये, अब पॉजिटिव एंड का मतलब यहाँ पे सप्लाई करने का ये है कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, मैं इस पोटेंशियल बैरियर से क्रॉस नहीं करवाना चाह रहा। ठीक है, मैं इन पॉजिटिव, ये अगर साइड पॉजिटिव हो जाएगी तो ये अपनी तरफ इस पॉजिटिव साइड की तरफ खिंचाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट करंट। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को आपने रिलेटिवली देखना है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव मींस हायर पोटेंशियल और नेगेटिव मींस लोअर पोटेंशियल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को आपने इस तरह से देखना है कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल की बात हो रही। अब हमें इतनी बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन जो था इस एन, पी और एन
इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, अब ये आगे एक और बैरियर था, इसको क्रॉस करके इसने इधर जाना था। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव दे रहे हैं, ये अगर बेस आपने, तो ये कलेक्टर को ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव, ये लेट से नेगेटिव होता है, तो अब आप इस हिस्से को देखें। अब आपने उसी तरीके से जिस तरह निचला निचला इसका जो पोर्शन देखा था, उसी तरीके से अब आप ऊपर वाला रीजन देखें इसका। जस्ट लुक एट दिस कलेक्टर बेस जंक्शन, राइट। So if you would take a look at this, you would find out that if this is positive and this is negative, the electrons would not be able to flow through the circuit from the p side to the n side, right? Do you understand that because this is positive, the electrons will remain stuck here because this is higher potential than this potential. Now on the other hand, what I can do is that I can make it more positive than this. Now you see there are there are to one positive charge here, there are 3 positive charges on the collector side. Now the overall force from the on the electron will not be towards this side, it will be towards this side. समझ आ रही इस बात की कि आपका मसला ये था कि बेस के ऊपर आपने एक सप्लाई किया हुआ था वोल्टेज, और एमिटर कलेक्टर के ऊपर आपके पास एक और वोल्टेज था। अब मसला क्या है कि कलेक्टर को अब आपने इलेक्ट्रॉन को उस जंक्शन से क्रॉस करवाना है, ठीक है। अब अगर नीचे वो ज्यादा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही फंसा रहेगा, लेकिन अगर आप ऊपर कलेक्टर के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई कर देंगे तो आप उसको क्रॉस करा देंगे उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n in this case should be at higher potential and p should be at lower potential, which means collector base junction should be forward biased होगी कि reverse biased होगी इस केस के अंदर? ये forward bias होगी कि reverse bias होगी? Now this is a very simple question. Anybody would like to answer? इस केस के अंदर ये forward bias है कि reverse biased है? Alright, I'm going to allow you only if you are going to ask me about transistors, not about Munir and his couplets. नहीं सर, फॉरवर्ड बायस नहीं, ये रिवर्स बायस्ड है। देखें फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब होता है। पी रीजन जो है जब आपका पॉजिटिव होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा एन के मुकाबले में, तो ये रिवर्स सॉरी बायस। सॉरी यस यस, मैंने सर साइन नहीं देखा था। ठीक ठीक, तो ये समझ आ रही है क्यों रिवर्स बायस्ड है ये, कि आपके पास जो एन रीजन है वो हायर पोटेंशियल पर है पी के मुकाबले में, इसलिए दिस इज रिवर्स बायस्ड। तो यू सी एक्टिव मोड के अंदर ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए एक्टिव मोड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही इस बात? तो इस बात को हम दोबारा से देख लेते हैं। अब आप इफ यू टेक अ लुक हियर, प्लीज ड्रॉप योर हैंड्स। आई नो दैट यू कट ऑफ के अंदर आपके पास अगर एमिटर बेस रिवर्स में है तो कंडक्ट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि एमिटर बेस जंक्शन की जो पीएन जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस्ड होना जरूरी है अगर करंट फ्लो। तो अगर वो फॉरवर्ड बायस्ड नहीं है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक होगी बात? इसी तरीके से कलेक्टर बेस जंक्शन को आपने रिवर्स बायस रखा हुआ है, लेकिन अगर एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड है तो करंट वैसे ही फ्लो नहीं कर रहा। तो एमिटर बेस जंक्शन अगर रिवर्स बायस्ड है तो रिमेंबर ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है फ्लो। प्लीज रिमेंबर दिस टेबल स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर EASA मॉड्यूल, कि ये जो अगर एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में है तो आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। अगर आपने एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कर दिया तो फिर आप कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो पोटेंशियल बैरियर क्रॉस कर सकता है। लेकिन जब वंस इट हैज क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर तो उसके आगे अगर आपने रिवर्स बायस लगाया हुआ है तभी वो क्रॉस करके आगे जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि वो ओवरऑल करंट इस तरह से फ्लो करेगा। तो ये जो दूसरी कंडीशन है एक्टिव मोड की, ये भी हमने देख ली। तीसरी कंडीशन जो है सैचुरेशन मोड की, वो हम देखते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखें अब हम बुक पे जाते हैं आपकी। ये देखें, अब आप देखें आपने 0.6, ये आपका जो बैरियर है ये वाला, ये 0.7 वोल्ट्स का, 0.6 वोल्ट्स का है। तो आपने किया क्या, ये लाइन जो एमिटर है इसको 0 वोल्ट्स दे दिए और 0.6 वोल्ट्स यहाँ पे दे दिए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स 0.6 वोल्ट्स देने की वजह से इनके ऊपर एक पुश लगा के जो ये पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर गए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल आपने 0.6 वोल्ट ये बैरियर के जितने ही थे, बैरियर क्रॉस करके यहाँ आ गए। तो अब आप देखें ये जो ब्लू सर्कल्स हैं इनको इन्होंने फिल कर लिया आके, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स हैव फॉलन इनटू द होल्स, तो होल्स फिल हो गई। लेकिन अब ये यहाँ फिल हम रखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि करंट कर फ्लो कंडक्ट करे डिवाइस में से। तो अब हो क्या रहा है कि आपने यहाँ पे 6 वोल्ट सप्लाई कर दी,
अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ था इस होल के अंदर, अगर इसको 0.6 वोल्ट के मुकाबले में ऊपर 6 वोल्ट खींच रहा है, तो देयर इज नो वे कि उसको 0.6 वोल्ट होल्ड करके रखे। 6 वोल्ट के पास बहुत ज्यादा ताकत है कि उसको ऊपर खींच लेगा। समझ आ रही इस बात की? तो ये जो 6 वोल्ट ऊपर की तरफ है, इसको जो पुल मिल रहा है वो इसको होल्स में से खींच के बाहर निकालेगा और अपनी तरफ ऊपर ले जाएगा। ठीक है, और ये करंट, ये जो होल्स यहाँ पे जो फिल हुए थे, ये दोबारा से एम्प्टी होंगे और ये दोबारा इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ फ्लो कर रहे हैं? नीचे से ऊपर। करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है? ऊपर से नीचे। कन्वेंशनल करंट जो हम लेंगे वो ऊपर से नीचे ही है ना, तो आप देखें कि कन्वेंशनल करंट का जो फ्लो है वो इस तरफ है। ठीक है, तो एनपीएन के अंदर ये जो ट्रांजिस्टर से शो किया हुआ ये फ्लो इस तरह से होता है और बेस का फ्लो इस तरह से होता है। क्लियर? ये बात समझ आती है? ये बात सबको समझ आती है? तो एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, अगर एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड है तो कंडक्ट नहीं होगा करंट। उसको फॉरवर्ड बायस करेंगे, फॉरवर्ड बायस करके आप बेशक कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस में रखें तो कंडक्ट करेगा करंट। जितनी ज्यादा आप फॉरवर्ड बायस बढ़ाते, रिवर्स बायस बढ़ाते चले जाएंगे, अगर लेट्स से ये 6 वोल्ट से मैं 10 वोल्ट कर दूं, यहाँ पे इसको मैं 10 वोल्ट कर देता हूँ, तो अब क्या हो रहा है? अब ज्यादा पुश मिल रहा है उसको, ज्यादा उसको ऊपर खींच, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे। दैट मींस कि रिवर्स बायस अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरे पास जो कलेक्टर में करंट इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। दैट मींस ट्रांजिस्टर में जो करंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो एक्टिव मोड के अंदर अगर मैं कलेक्टर बायस बढ़ाऊं तो कलेक्टर वोल्टेज बढ़ाऊं तो मेरे पास ज्यादा करंट फ्लो करेगा। दैट मींस एक्टिव मोड। ठीक होगी बात यहाँ तक? तो हमें ये क्लियर होती है कि एक्टर कट ऑफ मोड क्या है, एक्टिव मोड क्या है। तीसरी चीज रहेगी हमारे पास सैचुरेशन मोड। तो सैचुरेशन मोड मैंने आपको बताया कि सैचुरेशन मोड एक ऐसा मोड है जिसके अंदर करंट फ्लो जरूर कर रहा होता है, बट एट द सेम टाइम जब वो करंट फ्लो कर रहा है तो वो उसके वोल्टेज ज्यादा करने से आपके पास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक अ डिफरेंस वेदर द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। इसको हम आगे चल के देखते हैं। ठीक होगी बात? So this is what an NPN transistor looks like. ठीक है, और ये उसने बता दिया कि जी ये पीएनपी, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनपीएन के अंदर इस तरफ हैं, जबकि करंट आपका इस, ये करंट की जो डायरेक्शन है वो ये शो कर रहा है। ठीक है, ऑपोजिट होती है। पीएनपी के एनपीएन के अंदर पीएनपी का भी बता दिया, सिंबल्स पहले सिंबॉलिकली उसने बताया, फिर आपको उसने बना के दिखा दिया कि आपके पास इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड कि करंट किस तरह से फ्लो करता है इसके अंदर। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसकी डिस्कशन पे हम जाते हैं, बट बिफोर वी मूव ऑन टू दिस डिस्कशन लेट मी गिव यू वन मोर, लेट मी टेल यू अबाउट वन मोर थिंग कि ये हो क्या रहा है कि आपके पास जो आई बी था वो बहुत स्मॉल वोल्टेज थी जो आपने सप्लाई की थी। रिमेंबर, जो आपने बेस को वोल्टेज सप्लाई की थी, इट वाज अ स्मॉल वोल्टेज। दैट मींस थ्रू द बेस देयर विल बी अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, whereas through the collector there will be a huge amount of current flowing. That means the collector current will be way greater than the current in the base, because आपने वोल्टेज वहां पे ज्यादा दी हुई, तो चाहे वो सेमीकंडक्टर है, लेकिन ज्यादा वोल्टेज का मतलब ये कि ज्यादा करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। तो द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट इज कॉल्ड बीटा। यहाँ पे उसने बी शो किया हुआ, लेकिन आप बी कह दें, बीटा कह दें, आपको ये समझ आनी चाहिए कि आपके पास जो कलेक्टर करंट और बेस करंट के दरमियान रेशियो बनती है दैट्स कॉल्ड बीटा। ठीक है, इट्स अ पैरामीटर, एक 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 पैमाना है ट्रांजिस्टर का मेजर करने का। ठीक है, जिस तरह मैथ मेजर करने के आपके पास एक वो स्प्रिंग बैलेंस होता है जिसके ऊपर मेजर करते हैं, या कोई लेंथ मेजर करने के लिए आपके पास वो कोई वो होता है, स्केल होता है। तो इसी तरीके से ये बीटा भी एक पैमाना है स्केल मेजर करने का। ठीक है जी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। All right, so let's move on to the next discussion, which is यहाँ तक क्लियर है सबको बातें? बीटा का जो पैरामीटर है, या जो और चीज़ें, ये जो हमने करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो सारी देखी है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Alright, there is one more thing that we need to do, कि आपके पास जो कलेक्टर के अंदर, and for that purpose I would like you to
see the other figure. देखें जो emitter करंट था ये जो इस रीजन में फॉर्म कर रहा है, देखिए इसमें ये इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एन रीजन से इस रीजन में आए, ठीक है। फिर ये इस रीजन से इस रीजन में आए। आप देख रहे हैं कि एरो का साइज जो विड्थ है एरो की कम होती चली जा रही है। व्हाई इज दैट सो? क्यों आपके पास एरो का साइज कम हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन जो इस एन से इस एन तक पहुंचते हैं वो कम है, ऐसा क्यों है? कोई बता सकता है? कोई सोचे इसके ऊपर के बताए क्यों है? Anybody would like to answer? कोई आंसर कर सकता है इस बात को? सर ये क्वेश्चन की समझ नहीं आई सही से कि देखो सवाल ये है कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का जर्नी स्टार्ट हुई, ये पी में पहुंचे और पी से हमने उनको दोबारा एन में सक कर लिया, ठीक होगी बात? क्योंकि हमने जो कलेक्टर बेस जंक्शन थी वो बड़ी वोल्टेज अप्लाई की एज कम्पेयर टू बेस एमिटर जंक्शन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे थे इसको हमने रिवर्स बायस करके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ खींच लिया, ठीक होगी बात? ये समझ आ रही है सर्किट डायग्राम की? यस सर। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपके पास यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स चले थे यहाँ तक जो पहुंचे हैं वो कम है as compared to this thickness of the arrow. The thickness of this arrow or the thickness of this part of the arrow is less than the thickness of this part of the arrow. Why is that so? जो इसका मतलब ये बनता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले थे वो यहाँ पर पूरे सारे पहुंचे नहीं, कुछ बीच में रास्ते में शहीद हो गए, तो वो शहीद जो हुए हैं वो उनका क्या हुआ? Where did those electrons go? ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए? नहीं सर, नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ? सर वो होल्स के साथ उन्होंने एग्जैक्टली आप देखेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पहुंचे यहाँ पे, तो ये पूरा रीजन क्या है? ये होल से भरा हुआ रीजन है। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में कह लें कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वेल नॉट बेस्ट फ्रेंड्स बट दे आर लाइक ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये एक होल को क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की कि वो फिल हो सके, तो ये जो रास्ते से भी गुजर रहे हैं यहाँ से, तो ये पूरा रीजन होल्स के साथ भरा हुआ। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं इन होल्स में भी गिर गए हैं, ठीक है। some electrons fall into these holes and fill the holes, और वो फिर वहीं रह जाते हैं, उनको खींचा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर वहाँ रास्ते में गिर जाएंगे तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो बचेंगे वो आगे जाएंगे, लेकिन ये कुछ हैं जो मेजॉरिटी है करंट वो यहाँ फ्लो कर जाता है। ठीक होगी बात यहाँ तक? इस बात की समझ आ रही? इस पूरी डायग्राम की समझ आती है कि आपने इस P को इस N से हायर पोटेंशियल देके इसको फॉरवर्ड बायस किया एमिटर बेस जंक्शन को, फिर आपने इसको रिवर्स बायस किया कलेक्टर बेस को, और आपने हायर पोटेंशियल जितना आपने यहाँ पे फॉरवर्ड अप्लाई किया था उससे ज़्यादा यहाँ पे रिवर्स अप्लाई कर दिया। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपके पास यहाँ जो होल्स इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे थे वो ट्रेवल करके आगे पहुंच गए। समझ आ रही इस बात की सबको? मेक सेंस? इस बात की समझ आती? तो एक और चीज जो रह गई है वो क्या है, जो मैं जिस चीज को आप जिस इक्वेशन पे मैं पहुंचना चाह रहा हूँ आपके साथ, कि जो आपके पास एमिटर में करंट है, जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से निकले थे, ये जो NPN है और ये एमिटर बेस और कलेक्टर है, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले थे वो किसका सम थे? जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खर्च हुए और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खर्च हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स एमिटर के अंदर जितने थे वो किसका सम थे? जो इलेक्ट्रॉन्स बेस में यूज हुए और इलेक्ट्रॉन्स जो कलेक्टर में यूज हुए, राइट? The number of electrons that dropped into the holes of the base and the number of electrons that were passed on to the collector were the sum of those, were actually originating from the emitter. इसका मतलब क्या हुआ कि एमिटर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों का सम है। इसका मतलब ये बनता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं और करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो जो एमिटर में करंट है, एमिटर में जितना करंट आएगा that will be a sum of collector and base current, because you understand that the electrons that jumped from the emitter to the base and dropped into the holes, and part of those electrons jumped into the emit collector and passed out of the circuit into the device that we are intending it to flow through, intending current to flow through. तो उस दोनों से इलेक्ट्रॉन्स जो थे मिलके वो एमिटर के इलेक्ट्रॉन्स बनते थे।
तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो जो एमिटर का करंट है वो किसका वो कलेक्टर और बेस का मिला के करंट बनता है। दिस इक्वेशन, दिस इज व्हाट द इक्वेशन इज सेज। ठीक है, इस बात की समझ आ रही है? क्लियर होती है डिस्कशन? ये यहां तक समझ आती है? ऑल दोज हु आर एबल टू अंडरस्टैंड अप टिल दिस पॉइंट गिव मी अ यस। All right, the next thing that we need to see is a PNP transistor। तो आपने सारी बातें वही याद रखनी है। आपने याद रखना है कि आपके पास कट ऑफ के अंदर एमिटर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स में होगी, कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स में होगी। एक्टिव मोड के अंदर एमिटर बेस जंक्शन आपके पास फॉरवर्ड में होगी और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स में होगी। सिर्फ ये होगा कि फॉरवर्ड बायस को आपने रिमेंबर, फॉरवर्ड बायस इज व्हेन P इज पॉजिटिव। तो आपके पास पहले क्या था कि बेस जो थी वो हायर पोटेंशियल पे थी, अब P आपके पास ये है। तो इस PNP को कंडक्ट करवाने के लिए आपको ये जो है ये पॉजिटिव करना पड़ेगा और ये नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव है, N अगर नेगेटिव है तो इसको मजीद आपको, चूंकि आप रिवर्स बायस रखना चाह रहे हैं तो इस नेगेटिव के मुकाबले में आपको ये नेगेटिव शुड बी the emitter should be at higher potential than base। ये दो पॉजिटिव हैं, ये एक पॉजिटिव है, और ये कह लें कि और ये उसको उससे भी कम पोटेंशियल होना चाहिए। समझ आ रही इस बात की? तो इवेंचुअली क्या होगा कि करंट इस तरह से फ्लो करेगा इसमें, ये जो इसने शो किया हुआ। ठीक है, मेक सेंस? जो रूल्स हैं वो सेम रहेंगे, सिर्फ आपने ये देखना है कि आपके पास जो फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। जो आपके पास जो बेस जंक्शंस हैं उनकी पोलैरिटीज डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले PN जो था वो NP हो गया। ये उसने आपको शो कर दिया कि PNP ट्रांजिस्टर में से किस तरह से करंट फ्लो करेगा। राइट, मेक सेंस? क्लियर होती बात ये? क्लियर अप टिल दिस पॉइंट? एनी क्वेश्चंस? Any questions? How many of you understood what we discussed today? सर ये PNP दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए PNP एग्जैक्टली NPN की तरह ही है। ठीक है, आपने सिर्फ याद ये रखना है कि इसकी जो एनालॉजी है, जो इसकी नॉट एनालॉजी बट इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है आप डेवलप कर सकते हैं अपने एंड के ऊपर सोच के, इसके ऊपर जिस तरह से हमने NPN पे आज गौर किया है कि आप NPN के अंदर क्या कहते थे, ये बेस है, एमिटर, ये सॉरी दिस इज एमिटर, दिस इज बेस एंड कलेक्टर। राइट, इस एमिटर बेस जंक्शन को हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायस, दैट मींस इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको ये हायर पोटेंशियल पे चले गया, ये लेस पोटेंशियल पे चले गया। इससे क्या हुआ कि ये फॉरवर्ड बायस हो गया एमिटर बेस जंक्शन। लेकिन कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बायस रखना था। राइट, रिवर्स बायस रखने के लिए ये P है, ये N है, तो N को रिवर्स बायस के अंदर हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए P के मुकाबले में। तो ये जंक्शन क्या होगी, रिवर्स बायस्ड। तो ये डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट होगी। और कंडक्ट इसने किस तरह से किया कि आपके पास करंट इस तरफ फ्लो कर रहा था। यू रिमेंबर कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे थे और करंट इस तरफ फ्लो कर रहा था। ये कौन सा है, NPN है। बाकी सारी बातें वही हैं, PNP में सिर्फ इसकी पोलैरिटी डिफरेंट हो जाएगी। ये आपके पास बेस है, एमिटर है और कलेक्टर है। तो आपने एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना है। फॉरवर्ड बायस रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P को हायर पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ेगा और N को लोअर पोटेंशियल सप्लाई करना। तो ये देखें यहाँ पे P हायर पोटेंशियल पे था, यहाँ पे ये वाला P हायर पोटेंशियल पर है। ठीक होगी बात? फिर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे तो आपको इनको रिवर्स बायस रखना है। रिवर्स बायस का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो N है इसको हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और P को लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो आप इसके दोबारा यहाँ पे कम पोटेंशियल सप्लाई करेंगे तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा, इस केस में इस तरफ फ्लो करेगा। तो आप देख रहे हैं ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। ओवरऑल करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। जी ओके सर, ठीक है। ठीक है, सर इसमें करंट फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों तरफ इसका बहाव होता है? नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपका सर क्वेश्चन नहीं पहले समझ पा रहा। फॉरवर्ड बायस,
P से जब N में जाएगा तो फॉरवर्ड बाइस होता है, और जब दोबारा N में जाता है तो रिवर्स बाइस हो जाता है। जी बिल्कुल, उसकी वजह हमने देखी ना कि ये आप NPN की जब बात कर रहे होते हैं, NPN, तो ये वाला जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर कराने के लिए ये एमिटर है, बेस है और कलेक्टर है। तो इस कलेक्टर। इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करने के लिए इसको पॉजिटिव रखना पड़ता है, इसके मुकाबले में हायर पोटेंशियल पे यस लगाना सर। पड़ेगा, क्योंकि ये इसको यहाँ क्रॉस, जब ये यहाँ पहुंच गया है तो ये अब इसको दोबारा एक डिप्लीशन रीजन ये वाला जो है सामने आ गया इसके, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव से खींचा हुआ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मजीद पॉजिटिव यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा। इस 2 पॉजिटिव के मुकाबले में आपको 3 पॉजिटिव देने पड़ेंगे या 4-5 पॉजिटिव देने पड़ेंगे यहाँ पे, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा ना। यस सर। तो ये जब n को आप मजीद पॉजिटिव कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये रिवर्स बायस नहीं हो रहा। समझ आ रही इस बात की? Just give me a tick if you understand. All right, thank you. Any other question? ठीक है, so I want you to study these transistors theory on your own. कल की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आप इसको पढ़ के जो आपके क्वेश्चन हैं वो कल लेकर आए मेरे पास, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है। सैचुरेशन मोड एक रह गया है, सैचुरेशन मोड हम पढ़ेंगे कल, और सैचुरेशन मोड के साथ ही हम ट्रांजिस्टर के फंक्शंस पे भी चले जाएंगे। ऑलराइट, क्लियर अप टिल दिस पॉइंट? एनी क्वेश्चंस? And we'll start the class with Rafi's couplet. So please come prepared with the couplet tomorrow. The first thing, please remind me. We'll start with the share. Okay. Thank you very much. Allah Hafiz.